آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ گزشتہ شام کسی منچلے نے قدیم جالنا پولیس کو ریلوے اسٹیشن پر بم ہونے کی دی خبر۔ آدھی رات کو BDS اسکواڈ اور ڈاگ اسکواڈ نے ریلوے اسٹیشن علاقے میں چپے چپے کی لی تلاشی۔ نہ تو بم ملا اور نہ ہی بم جیسی کوئی شے، مگر عین لوکل باڈیز انتخابات سے پہلے اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے نے اڑا دی تھی پولیس اہلکاروں کی نیند۔ ایڈز کی روک تھام کے لیے واشی میں منعقد کیا گیا عالمی ایڈز کنٹرول ویک۔ عوام میں بیداری پیدا کرنے شہر میں کالج اسٹوڈنٹس نے نکالی ریلی اور بیداری ہفتہ ختم ہونے سے پہلے شہریان کو دیے نیک پیغامات۔ AMC کے یوم تاسیس پر گزشتہ شام کھیلا گیا میونسپل امپلائیز اور صحافیوں کے درمیان کرکٹ میچ۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی دھواں دھار بلے بازی نے پاور پلے میں دلا دی افسران کو شاندار جیت۔ میونسپل ملازمین نے منایا جشن۔ اور نائلون مانجے کی خرید و فروخت پر پابندی ہونے کے بعد بھی شہر میں ممنوعہ مانجے کا کاروبار جاری۔ غیر قانونی کاروبار کرنے والوں پر شکنجہ کسنے پولیس ہو گئی چوکس۔ جگہ جگہ مارے جا رہے ہیں چھاپے۔ اس معاملے میں کئی تاجروں کو کیا گیا گرفتار اور شہر میں نکالا گیا ان کا پیدل جلوس۔ خبریں تفصیل سے۔ گزشتہ رات 12 بجے کے قریب کسی منچلے نے قدیم بازار پولیس اسٹیشن جالنا کو فون پر یہ خبر دی کہ ریلوے اسٹیشن پر بم موجود ہے، جس کے بعد پولیس انتظامیہ حرکت میں آ گیا اور آدھی رات کو BDS اسکواڈ و ڈاگ اسکواڈ کے عملے نے ریلوے اسٹیشن کا چپا چپا چھان مارا، مگر نہ تو وہاں انہیں بم ملا اور نہ ہی کوئی بم جیسی مشتبہ چیز، جس کے بعد پولیس افسران و ملازمین نے راحت کی سانس لی۔ پولیس ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق گزشتہ رات تقریباً 12:30 بجے کے قریب قدیم جالنا پولیس اسٹیشن کو ایک فون کال آئی، جس میں بتایا گیا کہ جالنا ریلوے اسٹیشن پر بم رکھا ہے۔ پولیس نے اس نمبر پر بار بار فون کیا مگر متعلقہ شخص نے فون نہیں اٹھایا۔ بعد ازاں پولیس نے یہ اطلاع کنٹرول روم کو دی۔ اس کے بعد بم اسکواڈ اور ڈاگ اسکواڈ آدھی رات کے قریب ریلوے اسٹیشن علاقے میں پہنچ گئے۔ BDS اسکواڈ نے پورے علاقے کی تلاشی لی لیکن وہاں بم یا کوئی بھی بم جیسی شے نہیں پائی گئی، جس کے سبب غلط اطلاع دینے والے شخص کے خلاف BDS کی دفاع 217 کے تحت کیس درج کر لیا گیا ہے۔ काल रात्री 12:30 वाजेच्या सुमारास कॉलर 94 52 30 36 04 या नंबरवरून 112 ला कॉल आला होता। त्या कॉलरचं म्हणणं होतं की रेल्वे स्टेशनच्या परिसरात बॉम्ब ठेवलेला आहे अशी त्यांनी माहिती दिली। त्याची घटनेची गांभीर्य लक्षात घेऊन आम्ही स्वतः रात्रगस्तचे अधिकारी इंगळे साहेब आणि BDS बॉम्ब शोधक पथक ATC चे कर्मचारी असे आम्ही तिथं गेलो। सर्व छाननी केली, परंतु आम्हाला तिथं काय बॉम्ब सदृश्य वस्तू मिळून आलेली नाही। आम्ही सदरील कॉलरला भरपूर वेळा कॉल केला, परंतु त्याने त्यावेळेस तो कॉल फोन बंद करून ठेवलेला होता। त्यानुसार आम्ही आज रोजी त्याच्यावर BNS प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। आता आम्ही त्याचा पुढील तपास आम्ही स्वतः करीत आहोत। त्याचा नंबर मिळवलेला आहे। सध्या त्याचा फोन बंद आहे। पुढील कारवाई आम्ही ATS के अमलदार अधिकारी करत आहोत। औरंगाबाद शहर में महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें रियासत भर से कॉन्ट्रैक्टर्स शरीक हुए और उनके मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह हुकूमत से ये भी मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर जल जीवन मिशन के बकाया बिल अदा किए जाएं, बसूरत दीगर जल जीवन मिशन के काम बंद कर दिए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि
جل جیون مشن سمیت مختلف ترقیاتی کاموں کے تقریباً 34,000 کروڑ روپے حکومت کی جانب سے گزشتہ کئی برسوں سے ادا ہی نہیں کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوں کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیکیدار شدید معاشی دباؤ میں کام کر رہے ہیں۔ اگر حکومت نے فوری طور پر بقایا جات ادا نہ کیے تو ریاست بھر میں تمام جل جیون مشن کے کام روک دیے جائیں گے۔ تعلقہ بدنا پور کے ہلدولہ گاؤں کے ایک کسان نے راستے کا مسئلہ حل کرنے کی غرض سے نائب تحصیلدار سے ملاقات کی، لیکن نائب تحصیلدار اور وہاں موجود دوسرے ریونیو آفیسر نے اس کسان کے ساتھ توہین آمیز برتاؤ کیا، جس پر اس کسان کو تحصیل آفس کے احاطے ہی میں شدید دل کا دورہ پڑ گیا۔ اس معاملے پر ونچت بہوجن یوتھ آگاڑی جالنا کے ضلع صدر نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انتباہ دیا کہ فوری مذکورہ کسان کا معاملہ حل کیا جائے، بصورت دیگر نائب تحصیلدار کے چہرے پر کالک پوتی جائے گی۔ واضح ہے کہ بدنا پور تعلقے کے ہلدولہ گاؤں میں ایک کسان کا راستے کا مسئلہ کافی دنوں سے زیر التوا ہے۔ اس مقام کا نائب تحصیلدار تائیڈے اور بنوے نے پنچنامہ بھی کیا تھا، مگر الزام ہے کہ 50,000 روپے رشوت نہ دینے پر کسان کی کوئی بات نہیں سنی گئی۔ جب کسان نے نائب تحصیلدار سے وضاحت طلب کی تو مبینہ طور پر انہوں نے بدتمیزی کی، جس کے نتیجے میں کسان کو تحصیل آفس کے اندر ہی دل کا دورہ پڑ گیا۔ ونچت بہوجن آگھاڑی کے یوتھ ضلع صدر وجے لہانے نے آج متاثرہ کسان سے ملاقات کی اور کہا کہ تحصیلدار کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس کسان کو راستہ فراہم کروائے، ورنہ بدناپور کے نائب تحصیلدار کے منہ پر کالک پوتی جائے گی۔ एवढी घटना गंभीर असताना इथला प्रशासक जर एवढे डोळे बंद करून बसत असताना अगर त्या शेतकऱ्याचं जर त्याला वेळीच जर दवाखान्यात आलं नसतं, उपचार जर त्याच्यावर झाले नसते, तर त्या शेतकऱ्याचा खरोखर या ठिकाणी जीव गेला असता। आणि जीव गेल्यानंतर तिथला प्रशासक मग जागृत होतं आणि मग त्या शेतकऱ्याला काय तुम्ही त्याचा जीव गेल्यानंतर त्याला रस्ता ओपन करून काय फायदा आहे। एक अल्पभूधारक शेतकरी त्याचा 20 आर जमीन त्या ठिकाणावर आता सध्या पडीत पडेल आहे। आम्ही ती सुद्धा जाऊन वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते बघून आलेलो आहे। आम्ही त्या घटनेचा निषेध करतो आणि तिथल्या तहसीलदाराला आम्ही तुमच्या माध्यमातून या ठिकाणी इशारा देतो की तुम्ही त्याला 8 दिवसामध्ये त्याचा जर त्या रस्ता जर खुला करून दिला नाही तर वंचित बहुजन आघाडीच्या स्टाईल मध्ये आम्ही त्या तहसीलदाराच्या तोंडाला काळा फासल्याशिवाय राहणार नाही। तालुका वाशी के करमवीर मामा साहब जगदाले कॉलेज की जानिब से एड्स कंट्रोलिंग वीक के इख्तिताम पर अवामी बेदारी रैली निकाली गई। ज़िला उस्मानाबाद के तालुका वाशी में निकाली गई इस एड्स बेदारी रैली का आगाज़ रेड रिबन क्लब के रुकन सोहेल शेख ने एड्स बीमारी के बारे में मालूमात देते हुए इससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अपनी राय पेश की। इसके बाद कारगुजार प्रिंसिपल प्रोफेसर श्याम सुंदर दुके ने एड्स बेदारी की अहमियत वाज़ेह की। कॉलेज कैंपस से कारगुजार प्रिंसिपल प्रोफेसर श्याम सुंदर दुके और एनएसएस के प्रोग्रामिंग ऑफिसर ने हरी झंडी दिखाकर रैली का आगाज़ किया। देही अस्पताल में काउंसलर परमेश्वर तोंदारी ने एड्स की अलामात, सरकारी अस्पताल में फराहम की जाने वाली मुफ्त इलाज की सहूलियतें और बीमारी के खात्मे के लिए अवामी बेदारी की ज़रूरत पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर कारगुजार प्रिंसिपल प्रोफेसर श्याम सुंदर दुके, देही अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर दयानंद कवाड़े, एनएसएस प्रोग्रामिंग ऑफिसर प्रोफेसर अनंत पाटिल, प्रोफेसर डॉक्टर नेताजी देसाई, लेबोरेटरी टेक्नीशियन संतोष बुधोड़कर, काउंसलर परमेश्वर तोंदारी, हेल्थ वर्कर बाबा साहब नित्तल और दीगर शामिल थे। प्रोफेसर महादेव उंद्रे ने हाजरीन को हलफ दिलाया और शुक्रिया की रस्म प्रोफेसर डॉक्टर देवशाला रिसाड़ ने अदा की। जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के लिए तैयार की गई अबूरी वोटर लिस्ट में तकरीबन 9,338 अफराद के नाम डबल पाए गए हैं। लिहाजा अब बीएलओज घर घर जाकर इसकी तस्दीक करेंगे। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। जालना म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जालना के आम इंतखाबात के लिए तैयार करदा वोटर लिस्ट में तकरीबन 9,338 डुप्लिकेट नाम पाए गए हैं। वोटर लिस्ट में डुप्लिकेट वोटरों की तस्दीक के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया
घर घर BLOs भेजेगी और जिन वोटरों के नाम डुप्लीकेट या डबल हैं उनसे इस बारे में फॉर्म भरवाया जाएगा। वो किस ब्लॉक के लिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिलहाल जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में डुप्लीकेट नामों की जांच जारी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से वोटर लिस्ट का काम मुकम्मल कर लिया गया है और 15 दिसंबर को हतमी वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। ये मालूमात असिस्टेंट कमिश्नर केशव कानपुड़े ने दी है। हो, जालना महापालिकेमध्ये 9,338 नावे दुबार आढळली होती. त्या सर्व मतदाराची यादी आपण जालना महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर अपलोड केली आहे आणि त्याच्यासोबत एक फॉर्म आहे परिशिष्ट 1, तो पण आपण वेबसाईटला अपलोड केला आहे. ज्या नागरिकांनी स्वतःहून ती यादी पडताळणी करून त्यांचं नाव पाहून आम्हाला अर्ज केला की आम्ही ह्या अमुक एका मतदान केंद्र प्रभागात मतदान करणार आहोत आणि अमुक ठिकाणचं आमचं वगळावं असं आम्हाला त्यांनी लिखी दिलं, तर आम्ही त्यांना ज्या प्रभागात त्यांनी इच्छा व्यक्त केली मतदान करण्याची तिथं त्यांचं नाव ठेवू आणि दुसऱ्या ठिकाणी त्याला दुबारचा शिक्का मारणार आहोत. ही एक प्रक्रिया झाली. आम्ही त्यांना म्हणजे आवाहन केलंय. दुसरी प्रक्रिया अशी आहे की आम्ही प्रत्येक घरी त्यांच्या BLO पाठवणार आहोत. आम्ही ती यादी विधानसभेच्या भागनीय आहे, त्याला वेगवेगळं करणार आहोत. भागनीय यादी करून प्रत्येक BLO त्याच्या घरी पाठवू आणि त्या मतदाराकडून आम्ही स्वतःहून पण फॉर्म भरून घेणार आहोत. तशी प्रक्रिया सुरू झाली का? हो, तशी प्रक्रिया 9 तारखेपासून सुरू झाली, 9/12 पासून. जालना जिले में कहर बर्पा करने वाले आवारा कुत्तों का अब बाकायदा सर्वे किया जाएगा। इस ज़िमन में इंतज़ामिया ने एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। इत्तला है कि जालना शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र अब उनका शहर भर में सर्वे करवाया जाएगा। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस ज़िमन में बाकायदा हुक्मनामा जारी किया है। बल्दिया के सफाई इंस्पेक्टर मोहल्ला मोहल्ला जाकर आवारा कुत्तों की तादाद का सर्वे करेंगे। दरमियान में पिछले कुछ दिनों से जालना शहर में आवारा कुत्तों के फैमिली प्लानिंग ऑपरेशंस के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और अब तक 600 स्ट्रीट डॉग्स की नज़बंदी की जा चुकी है। गुज़िश्ता एक साल में जालना शहर में 1671 शहरियों को आवारा कुत्तों ने काट लिया था, जबकि 2 कमसिन बच्चों की मौत आवारा कुत्तों के हमले में हुई है। इन्हीं वाक़यात के पस मंज़र में जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पूरे शहर में आवारा कुत्तों का सर्वे करवाने का फैसला किया है। ये मालूमात जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड ने दी। आपले जे स्वच्छता निरीक्षक आहेत त्यांच्याद्वारे आपण जे शहरातील मोकाट कुत्रे आहेत त्यांचा आपण सर्वे करणार आहोत। सर्वेसाठी 2 दिवसाचा वेळ आपण दिलेला आहे। उद्यापर्यंत आपल्याकडे आकडा येईल आणि त्यामध्ये वेगवेगळ्या बाबी आहेत की किती कुत्रे आहेत, त्यानंतर किती कुत्र्यांचं निर्बीजीकरण झालेलं आहे, कुठल्या भागात आहेत वगैरे अशा गोष्टी त्यामध्ये आहेत। आपल्याकडे निर्बीजीकरणाकरिता आपण 2 सेंटर उभारलेले आहेत, एक अग्निशमन केंद्राजवळ आणि एक भोकरदन नाका। तर इथे दोन्हीची मिळून कॅपॅसिटी आपली 12 ते 15 कुत्र्यांचं आपण रोज निर्बीजीकरण करतो आणि आतापर्यंत 594 कुत्र्यांचं निर्बीजीकरण झालं। खदीम शहर के अंदरूनी रास्ते नहायत खस्ता हो चुके हैं और उनमें जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियान हादसात की जद पर है। लिहाजा इन गड्ढों की मरम्मत फौरी शुरू करवाई जाए। ये मतालबा यूथ कांग्रेस के कायद लियाकत पठान ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से किया है। मालूम होगा दमड़ी महल के रोड पर ब्रिज के वास्ते कुछ पार्टियों ने इतना श्रेय लिए थे और तारीफ करते थे वो ब्रिज की और रोड की, और साथ में एक साहब की भी तारीफ करते थे। और एक साहब तारीफ करते काबिल के है, वो काम करके देते। इससे पहले भी हमारा चप्पा चौक का काम उन्होंने एक बोलने पे उसका कैश बॉक्स डाल के पानी की समस्या और गट्टू की समस्या पूरी उन्होंने बोलने पे करे। पर दमड़ी महल का ब्रिज बने जब से आज उसको 2017 में बना था शायद, वो उसको 10-12 साल हो गए, मगर अभी तक उसके ऊपर डामर का लेयर नहीं डाले। उसको कोई भी ब्रिज बनता, कोई भी गटर पे ऊपर नाले के ऊपर कोई ब्रिज बनता, उसके ऊपर कंक्रीट नहीं होता, उसके ऊपर डामर का लेयर आती। और अशोक नगर का जो हमारा ब्रिज है दमड़ी महल को जाता, वहाँ 2 ब्रिज है, तो दोनों ब्रिज की हालत खस्ता हो गई, ख़राब हो गई। उसमें क्या हुआ, नीचे ऊपर रहने में मुँह पे जो गाड़ी जाती, जो लेडीज़ वहाँ पे आते जाते कॉलेज को और कलेक्टर ऑफिस में जो भी लोग जाते तो वो ब्रिज पे गिर रहे वहाँ पे। अभी तो मैं आपको बता दूँ कि उसके दमड़ी महल के ब्रिज के सलिए निकल गए। हमने वही बोले साहब
बोला जल्दी जल्दी से काम करो। और रोशन गेट के अतराफ में भी लोगों को आने जाने को तकलीफ हो रही, वो ट्रैफिक जाम हो रहा, उसका भी बोले हुए हमने। नवाबपुरे से डीसी चौरस तक का बोले, वहाँ का रोड नवाबपुरे का रोड और सबसे बुरा रोड, और वहाँ से खास गेट से मदनी चौक खबरस्तान तक का बोले हुए, खबरस्तान से MGM तक का बोले हुए, यहाँ तक कि मोड़े नाके मोड़े में जो भवानी नगर कारपोरेशन से फिल्म टी तक रोड खराब हो गया। वहाँ के आगे का ब्रिज भी ऐसे टूट गया, वहाँ गड्ढे हो गए हुए, वहाँ पे डामर के लहर डालने को होना। अभी चंपा चौक से रोशन गेट डिवाइडर बंद हो गए हुए, डिवाइडर टूट गए हुए, लोग आ रहे जा रहे क्रॉस नो एंट्री मार के जा रहे, उसमें भी एक्सीडेंट होने के चांस है। रोशन गेट से शरीफ कॉलोनी वहाँ पे डिवाइडर टूटे हुए हैं, वहाँ पे भी कुछ काम नहीं कर रहे। मैं तो बोलना चाहूँगा कि MIM जब से आई हुई है, इनको 5 से 7 विरोधी पक्ष नेता मिले थे और इन्होंने मुसलमानों का कोई काम नहीं करे। कॉन्ट्रैक्टर भी मुस्लिम उद्घाटन करे उन्होंने, सिर्फ कौम को चॉकलेट देने के वास्ते। इन्होंने यहाँ औरंगाबाद शहर में कुछ काम नहीं करे, पूरे मराठवाड़े में घूम रहे कि हम पानी देंगे, स्कूल बनेंगे, और यही शहर का डेवलपमेंट नहीं करे। जो विरोधी पक्ष नेता के वार्डों में पूरा गड्ढे खुदे हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे वहाँ पे। कांग्रेस ने काम करी, पब्लिक को मालूम है, और आपके माध्यम से भी हमने काम करके बताए हुए। हम पब्लिक कैसे लड़े, हमको कोई पब्लिसिटी नहीं करने की, इनकी ऐसा कोई पब्लिसिटी नहीं करने की। विरोधी पक्ष नेता है, हर बात में लगेज उठा रहे, हर लोगों को काम करके दे रहे नहीं। तो आप पूरे का रोड जिनसी चौरस तक कम से कम 1000 गड्ढे हो सकते। आपको देख लो, ऊपर से स्मार्ट सिटी के माध्यम से 317 करोड़ काम थे, 117 रोड, इसके अलावा इससे कुछ काम नहीं करे। कांग्रेस ने करी हुई ना, कांग्रेस में 70 साल में जो काम करी हुई, आप किस मालूम है क्या काम करी हुई, हम बोल के नहीं बताते, पब्लिक को मालूम है क्या काम करी। ल्यूपिन फाउंडेशन और ल्यूपिन लिमिटेड की जानिब से अपने CSR फंड से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा के अहाते में 1,53,000 रुपयों की लागत से हैंड वॉश स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसका इफ्तिताह मज़कूरा कंपनी के अफसरान के हाथों आज अमल में आया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल किराड़पुरा नंबर 1 में लगाए गए हैंड वॉशिंग बेसन के इफ्तिताह के मौके पर म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर भारत 3 गोटे, प्रोग्रामिंग ऑफिसर नानदेव सांगड़े, एजुकेशन डिपार्टमेंट के OS GV बाराबोटे, ल्यूपिन फाउंडेशन और ल्यूपिन कंपनी के जिम्मेदारान श्री वेंकटेश शेटे, देवीदास वादोकर, पूजा जैन, दिलीप खंडाड़े, विशाल शिंदे मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस अहम कार-ए-खैर की कामयाबी में डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व शोबे तालीमात के HOD अंकुश पांढरे और नानदेव सांगड़े की मुसलसिल काविशें और रहनुमाई अहम साबित हुई है। स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया। ये हैंड वॉश स्टेशन तलबा के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, जो सफाई, सेहत और हिफाजत की पहली सीढ़ी है। हाथ धोने की आदत बच्चों को बीमारियों से बचाती है, सेहत बेहतर करती है और सफाई का शऊर पैदा करती है। इस मौके पर ल्यूपिन फाउंडेशन और ल्यूपिन लिमिटेड के जिम्मेदारान ने तलबा की रहनुमाई की। तलबा की जानिब से CSR के तहत स्कूल अहाते में हैंड वॉश स्टेशन कायम करने पर उनके लिए एक इस्तकबालिया गीत स्कूल के तलबा ने गाया, जिसे हाज़रीन ने खूब पसंद किया। तमाम मेहमानों के खिताबात के बाद स्कूल की प्रिंसिपल रईसा बेगम अयूब खान ने अपने सदारती खुतबे में कहा कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की काविशों के सबब म्यूनिसिपल स्कूल का मेयार आए दिन ऊंचा होता जा रहा है। उन्होंने ल्यूपिन फाउंडेशन और ल्यूपिन लिमिटेड के ओहदेदारान को स्कूल की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया और स्कूल के लिए CSR के तहत हैंड वॉश स्टेशन बनवाने पर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। नाजरीन, यूँ तो आज से 1400 साल पहले ही पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदगान तौहीद को सफाई के ताल्लुक़ से आगाह किया था कि सफाई आधा ईमान है। यूँ तो रोज़ाना ही बच्चे अपने घरों में अपने हाथ धोते हैं, लेकिन हाथ धोने के तौर तरीक़ों से नावाक़ियत के सबब वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा रहता है। लिहाजा यहाँ लगाए गए हैंड वॉश स्टेशन से मुताल्लिक़ दीवार पर तलबा की रहनुमाई के लिए हाथ धोने के तौर तरीक़े बताए गए, जिसके ज़रिए तलबा
जरासीम से पाक हो सकते हैं। स्कूल की सदर मोअल्लिमा रईसा बेगम अयूब खान ने मेहमानों से दरख्वास्त की कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा का ताल्लुक़ पसमानदा तबक़ात से होता है, लिहाजा उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करवाने की गर्ज से ल्यूपिन फाउंडेशन और ल्यूपिन लिमिटेड के अलावा अगर दीगर सनतकार भी आगे आए तो म्यूनिसिपल कारपोरेशन का बड़ी हद तक माली बोझ कम हो सकता है और तलबा को बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने में आसानी हो सकती है। अधीक्षक माननीय बारावटे सर आणि रईसा बेगम मॅडम यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो। देणारे देत असतात, परंतु घेणाऱ्याला सुद्धा तितकी चिकाटी असावी लागते। जेव्हा शिवमिल कॉलनी शाळेमध्ये हँडवॉश स्टेशनचं आणि आपण टॉयलेटचं काम केलं गरजेचं, तेव्हापासून मॅडमच्या लक्षात बसलं की माझ्या शाळेमध्ये सुद्धा हँडवॉश स्टेशन पाहिजे आणि ते लुपिन फाउंडेशनचं अतिशय क्वालिटीचं ते काम करतात आणि CSRच्या माध्यमातूनच पाहिजे, कारण आमचे आयुक्त साहेब तर शाळेसाठी खर्च करण्यासाठी कुठेही मागे पाहत नाही। आता तुम्ही पाहिले हे जे म्हणजे क्रीडा शिक्षक असतील, संगीत प्रशिक्षक असतील, म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेबरोबर सर्वांगीण विकास होण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून साहेबांचे खूप प्रयत्न असतात। पूरे भारत में लगभग 12 वेबसाइट्स है, फैक्ट्रीज है, तो हर साल हम लोग लाइवलीहुड और हेल्थ पे मेन फोकस करते हैं, लेकिन उसमें हमने ये भी देखा कि हर साल हर लोकेशन पे एक स्कूल को हम लोग डेवलप करेंगे वॉश प्रोग्राम में, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन, ये प्रैक्टिसेस उस स्कूल में अच्छे से अडॉप्ट हो। इसलिए हम लोग पिछले साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी महानगर पालिका के जो फाउंडेशन है और उनकी टीम है, उनका सहयोग समन्वय देख के मुझे लगता है अपनी 3 स्कूल लिए इस बार। अगर आपके हाथ पे खाना हो या कोई चीज हो तो गंदगी होती है, आपकी चीज है, आपके कपड़े खराब हो सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी हेल्थ के ऊपर असर कर सकता है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हाथ अच्छे से धोए। आपके यहाँ पे मैं जब स्कूल में आई तो हाथ कैसे धोते हैं ये दीवार पे पेंट किया है, आपने देखा है? आप वैसे ही हाथ धोते हो, तो आप वैसे ही हाथ धोना, अपने पर्यावरण का, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। और आपके लिए हैंडवॉश स्टेशन हमने बनाया है, इसको अच्छे से इस्तेमाल करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके लिए ही है। और आप AMC के 43वें यौम तासीस पर म्यूनिसिपल अफसरान और सहाफ़ियों के दरमियान गुज़िश्ता शाम क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें अफसरान की टीम ने पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए सहाफ़ियों की टीम को शिकस्त देकर ट्रॉफ़ी अपने नाम कर ली। हर साल की तरह इस साल भी औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस पर म्यूनिसिपल अफसरान और सहाफ़ियों के दरमियान क्रिकेट का मुकाबला गुज़िश्ता शाम गरवारे स्टेडियम पर मुनक़िद किया गया। म्यूनिसिपल मुलाजमीन की टीम की क़यादत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने की, जबकि सहाफ़ियों की टीम की क़यादत मुजीब देवनीकर ने की। इब्तिदा में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फ़ैसला किया और मुकर्ररा 8 ओवर्स में 69 रन बनाए, जबकि सहाफ़ियों की टीम में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ अकाउंट्स ऑफिसर संतोष वाहुड़े को भी शामिल किया गया था। सहाफ़ियों की टीम ने म्यूनिसिपल अफसरान के दिए गए निशाने का पीछा करते हुए मुकर्ररा ओवर ख़त्म होने से एक गेंद पहले निशाना मुकम्मल कर लिया था और उन्हें आखिरी गेंद पर जीत के लिए 1 रन दरकार था, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ अकाउंट्स ऑफिसर संतोष वाहुले आखिरी गेंद पर आउट हो गए। अब वाकई गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंद की थी या संतोष वाहुले जानबूझकर अपने बॉस और अपने कलीग्स की दोस्ती का हक अदा करने के लिए आउट हो गए, ये तो वही जानते हैं। लेकिन आखिरी गेंद पर संतोष वाहुले के आउट हो जाने के बाद दोनों ही टीमों का स्कोर बराबर बराबर रहा, लिहाजा सुपर पावर ओवर खेला गया, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। इस तरह से गुज़िश्ता का मैच
सहाफ़ी हार गए। मैन ऑफ द मैच और बेस्ट बैट्समैन का एजाज म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत को दिया गया। इस जीत पर म्यूनिसिपल अफसरान खुशी से सरशार दिखाई दिए और उन लोगों ने ग्राउंड पर जमकर रक्स किया। अतिशय सुंदर सामना, प्रत्येक वेळा वन साइड मारायचं, परंतु या वेळा खूप रंगतदार असे स्पर्धा. लास्ट इयरची खूप इच्छा होती की फ्लडलाईट्स मध्ये खेळावा, परंतु या वेळा तो साकार झाला. आय एम व्हेरी थँकफुल की मी इंजुरी नंतर पहिला मॅच जिला नांदेड़ के मजाफा चिंचोली से गुजर रही गोदावरी नदी के किनारे से गैर कानूनी तरीके से रेत निकासी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस गोरख धंधे में इस्तेमाल किया जाने वाला 23,50,000 रुपये मालियत का सामान जब्त कर लिया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक नांदेड़ के एसपी अविनाश कुमार की जानिब से चलाए गए ऑपरेशन फ्लैश के तहत एपीआई संजय नील पत्रेवार अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान खुफिया इत्तला मिलने पर वो फौरी तौर पर मौजे चिंचोली के गोदावरी दरिया के किनारे पहुंचे, जहां बगैर इजाज़त लोहे के इंजन और थर्माकोल के टुकड़ों के जरिए गैरकानूनी रेत निकाली जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 12 थर्माकोल के टुकड़े और 12 लोहे के इंजन जब्त कर लिए, जिनकी मजमूई मालियत 23,50,000 रुपये बताई जा रही है। थर्माकोल के इन टुकड़ों को जिलेटिन की मदद से मौके पर ही जला दिया गया। इस मामले में चिंचोली के हनुमंत जाधव, आकाश जाधव, गोपीनाथ जाधव, सतीश एड़े और परमेश्वर शिंदे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई में एपीआई संजय नीलपत्रेवार, पीएसआई गजानन गाड़ेकर, पुलिस हेड कांस्टेबल गंगाधर चिंचोड़े, विश्वनाथ बोरकर, माधव पवार, तुकाराम जूने के अलावा मंडल ऑफिसर शिवकांता पवार और ग्राम महसूल ऑफिसर मोतीराम पवार ने अहम किरदार अदा किया। इस कामयाब कार्रवाई पर डिस्ट्रिक्ट एसपी ने उस्मान नगर पुलिस की सराहना की है। मारूफ सोशल वर्कर हाजी इसाक पटेल की कामयाब नुमाइंदगी के सबब म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने किराड़पुरे की गलियों में सीमेंट रास्तों का तामीराती काम और नई ड्रेनेज लाइन डलवाने का काम शुरू किया है, जिस पर इलाके के साकिनान ने खुशी व मसरत का इजहार किया। नाज़रीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आम इंतखाबात की आमद है। शहर में सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं, तो दूसरी जानिब किराड़पुरा के सोशल वर्कर हाजी इसाक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बार बार चक्कर काटते हुए इलाके के मसाइल पर इंतजामिया से नुमाइंदगी कर रहे थे और उन्हें उनकी इस कोशिश में कामयाबी भी मिल गई, जिसके बाद म्यूनिसिपल इंतजामिया ने 90 लाख रुपयों के अखराजात से किराड़पुरा इलाके की गली नंबर 1, 3, 4, 6, 10 और कलीम MGM के घर वाली गलियों में सीमेंट रास्तों का तामीरी काम शुरू करवाया, जबकि किराड़पुरा की गली नंबर 3, 9, अज्जू तबेला गली, यूसुफ भाई गली, रईस भाई ठेकेदार की गली, कपड़े वाली गली, जमील बेकरी, बाबू भाई देग वाली गली, गली नंबर 4/4, गली नंबर 4/6, गली नंबर 5/6 में नई ड्रेनेज लाइन कामों का इसी हफ्ते इफ्तिताह किया गया और इन दोनों ही कामों पर लगभग 90 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इलेक्शन से कबल किराड़पुरा इलाके की गलियों में नई ड्रेनेज लाइन डलवाने और सीमेंट रास्तों के तामीरी काम शुरू करने पर इलाके के साकिनान ने खुशी व मसरत का इजहार किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के MIM पार्टी के, उनके आदेश के अनुसार महानगर पालिका की निधि से हमने 90 लाख रुपए का काम का इफ्तिताह चालू कर दिए थे इम्तियाज भाई की इजाज़त पे। और अभी इम्तियाज भाई की अगले हफ्ते में एक बड़ी यहाँ पे उनके हाथ से उद्घाटन होने जा रहा है और दूसरे गले का। तो 1 नंबर गली, 3 नंबर गली, 4 नंबर गली, 6 नंबर गली, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, इसमें कांक्रीट और डेनिस के लाइन, उसी के साथ साथ तुम्हारे कलीम MGM की गली, वहाँ पे डेनिस का काम, कांक्रीट का काम, उसके साथ साथ तुम्हारे यूसुफ भाई की गली, तुम्हारे अहमद भाई केबल वालों की गली, तुम्हारे राजू भाई तबेले की गली, जमील भाई बेकरी की गली, बोमिल वाली गली और कपड़े वाली गली, ऐसे टोटल एकूण 20 गलियां का डेनिस का काम चालू है और 10 गलियां कांक्रीट का काम चालू है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के
नुमाइंदगी में ये काम को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ में हमारे पूरे महल्ले के जिम्मेदार लोग, शौकत भाई है हमारे, इन तमाम लोगों की निगरानी में ये पूरे काम हो रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में भी जो तुम्हारे बाजू की 11 नंबर है, 12 नंबर है, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, तो ये भी काम बहुत जल्द होने जा रहा है। इसी के बाद में, क्योंकि उसकी आचार संहिता से हमारा काम है कि आचार संहिता से पहले वो भी हमारा काम मुकम्मल हो जाए। हाँ, हमारे हज साहब ने ना बहुत अच्छा काम करे इधर, जो भी है तो नल का, इसका अभी रोडों का काम चालू कर दिए, और अल्लाह करम से अच्छी ये करे हज साहब ने, बहुत सर्विस दिए, बहुत बड़ा काम है उनका, अच्छा अल्लाह करम से। अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो अगर 10 नंबर गली है, इसका ड्रेनेज हाजी साहब ने जो है तो नल की पाइपलाइन का काम और ड्रेनेज का तो पहले हो चुका है। अभी जो है तो सीमेंट कंक्रीट रोड का काम इन्होंने बहुत दिनों से जो है तो गली का काम नहीं हुआ था। हाजी साहब ने कोशिश कर जो है तो हमारी गली का काम किया, इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नायलॉन मांझे का कारोबार करने वाले ताजिरों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए इस गोरख धंधे में मुलविस कुछ कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया और उनका शहर में पैदल जुलूस निकाला गया। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से शहर में ममनुआ नायलॉन मांझे का इस्तेमाल बेदरीग होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कई अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं और ज़ख्मियों की तादाद बढ़ने के बाद शहरियान में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा था। हालात की संजीदगी को देखते हुए पुलिस इंतज़ामिया ने नायलॉन मांझा फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों पर निकेल कसने के लिए कुछ कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान ज़ब्तशुदा नायलॉन मांझे के साथ मुलजिमीन को अवाम के सामने लाया गया ताकि शहरियान में बेदारी पैदा की जा सके। पुलिस ने इस तरह की गैरकानूनी फ़रोख्त के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त इक़दामात उठाने का इंतबाह भी दिया है। साथ ही शहरियों से अपील की गई है कि अगर कहीं नायलॉन मांझे का इस्तेमाल या फ़रोख्त होते देखें तो फ़ौरन पुलिस को इत्तला दें। शहरियान के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी। शहर में नकली पुलिस बनकर शहरियान को ठगने वाली टोली ने महज आधे घंटे में 2 मुख्तलिफ मकामात पर बुजुर्ग शख्सियात को अपना निशाना बनाया और उन्हें डरा धमका कर सोने की कीमती चेन और अंगूठी लेकर रफू चक्कर हो गए। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक मंगल की सुबह तकरीबन 11 से 11:30 बजे के दरमियान शहर में नकली पुलिस बनकर वारदात करने वाली टोली ने 2 बुजुर्ग शहरियों को बचश्म खुद टारगेट किया। पहली वारदात में शिकायत कुनिंदा गोपाल राजाभाऊ कुलकर्णी, जो कि शास्त्री नगर इलाके के साकिन है और पूजा पाठ करके अपनी गुजर बसर करते हैं, पूजा का प्रोग्राम ख़त्म करके उल्का नगरी अपनी बहन के यहाँ गए थे। वापसी में शास्त्री नगर के हनुमान मंदिर के नज़दीक बुलेट मोटरसाइकिल पर आए 2 अफराद ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करते हुए कहा, सोने के जेवरात की वजह से आजकल कत्ल बहुत ज़्यादा होते हैं, लिहाजा वो अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी निकाल लें। इस तरह से खौफ पैदा करते हुए कुलकर्णी की 6 ग्राम सोने की अंगूठी और चांदी की अंगूठी कागज़ में रखने को कहा और उन्हें बातों में उलझाकर असल अंगूठियाँ लेकर उन्हें पत्थर से भरी नकली पुड़िया थमा दी और मौके से भाग निकले। इस मामले में जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरी वारदात दोपहर 12:30 बजे के करीब संग्राम नगर फ्लाईओवर के नज़दीक पेश आई। शिकायत कुनिंदा श्रीकांत सुधाकर देशपांडे को वहां 3 जाली पुलिस एहलकारों ने रोक लिया। उन्होंने भी वही तरीका अपनाते हुए कहा कि हम पुलिस वाले हैं और देशपांडे के गले से 2 तोले वजनी सोने की चेन और 1 तोले की अंगूठियां लूट लीं। इस मामले में सातारा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। नकली पुलिस की मुसलसिल 2 वारदातों से शहर में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने खासतौर पर बुजुर्ग शहरियान से चौकस रहने की अपील की है। जवाहर नगर और सातारा पुलिस स्टेशन के CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमों की तलाश जारी है। शहर में एक बार फिर चेन स्नैचर्स सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता शाम तिलक नगर इलाके में इसी तरह का एक वाक़या पेश आया, जिसमें एक खातून के गले से 2 नामालूम लुटेरों ने सोने की कीमती चेन छीनकर राह फरार इख्तियार कर ली।
ये मामला जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। औरंगाबाद शहर के तिलक नगर इलाके में ये वारदात हफ्ते की रात तकरीबन 8 बजे पेश आई। शिकायत कुनिंदा की वालिदा शिव शंकर कॉलोनी की जानिब से आने वाली रोड के कोने पर पैदल घर जा रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 मालूम चोरों ने खातून को निशाना बनाया, लाखों रुपये मालियत के जेवरात लूट लिए। ये वाक़या देर रात पेश आया है। इस मामले में जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है और तहकीक जारी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुज़िश्ता शाम किसी मनचले ने कदीम जालना पुलिस को रेलवे स्टेशन पर बम होने की दी खबर। आधी रात को BDS स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने रेलवे स्टेशन इलाके में चप्पे चप्पे की ली तलाशी। ना तो बम मिला और ना ही बम जैसी कोई शय, मगर ऐन लोकल बॉडीज इंतखाबात से पहले इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे ने उड़ा दी थी पुलिस एहलकारों की नींद। एड्स की रोकथाम के लिए वाशी में मुनक़िद किया गया आलमी एड्स कंट्रोल वीक। अवाम में बेदारी पैदा करने शहर में कॉलेज स्टूडेंट्स ने निकाली रैली और बेदारी हफ्ता खत्म होने से पहले शहरियान को दिए नेक पैगामात। AMC के यौम तासीस पर गुज़िश्ता शाम खेला गया म्यूनसिपल एम्प्लॉइज और सहाफ़ियों के दरमियान क्रिकेट मैच। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की धुआंधार बल्लेबाजी ने पावर प्ले में दिला दी अफसरान को शानदार जीत। म्यूनसिपल मुलाजमीन ने मनाया जश्न। और नायलॉन मांझे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी होने के बाद भी शहर में ममनुआ मांझे का कारोबार जारी। गैर कानूनी कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने पुलिस हो गई चौकस। जगह जगह मारे जा रहे हैं छापे। इस मामले में कई ताजिरों को किया गया गिरफ्तार और शहर में निकाला गया उनका पैदल जुलूस। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।